Very good morning to all. I hope you are doing great. I am also good. Very warm welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Reena and I am so happy to have you here. In today's video, we are going to talk about Unit 5 of subject Industrial Psychology. And in this unit, we are going to cover all these topics. First topic we have fatigue, monotony, boredom, safety, accident, organizational stress, major causes, major effect and coping with stress. Next, we have work and equipment, design and working conditions. So let's understand all topics one by one. So first topic we have fatigue. So basically fatigue is a physical and mental state of extreme tiredness resulting from prolonged work, lack of rest or stress. It reduces an efficiently it reduces an individual efficiency and attention to tasks. फटीग का मतलब ये है कि जब किसी भी इंडिविजुअल को फिजिकल और मेंटल जो है वो क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। और ये थकान किस वजह से होती है? जब आप बहुत टाइम तक काम करते हो या फिर आपको रेस्ट नहीं मिलता है काम के बीच में, या फिर स्ट्रेस की वजह से भी आपको थकान होती है। और ये जो जब आप बिल्कुल थक जाते हो मेंटली और फिजिकली, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो उस इंडिविजुअल की एफिशिएंसी एंड अटेंशन टू टास्क दोनों ही चीज़ें कम हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम तक वो काम पे फोकस नहीं कर पाता है जब वो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो गया होता है, और एफिशिएंसी भी कम हो जाती है फैटीग की वजह से। एंड दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ फैटीग. First cause we have long working hours, which means working overtime without sufficient break. जब आपको ब्रेक नहीं मिलती है और आप ओवर टाइम, अगर आपको 8 घंटे काम करना है और उसमें भी आप 10 घंटे काम कर रहे हो या 18 घंटे काम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है? फैटीग, आप बिल्कुल थक गए होते हो, एग्जॉस्ट हो गए होते हो फिजिकली एंड मेंटली. नेक्स्ट वी हैव फिजिकल ओवर एक्सर्शन task, which means the task requiring heavy lifting or intense physical effort. Next we have mental overload, which means the continuous decision making or problem solving task. mental overload में जैसे कि अगर मैं आपको मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देती हूँ एंड कंटिन्यूसली मैं बोलती हूँ कि सिर्फ आपको 4 घंटे के लिए सिर्फ मैथ पढ़ना है, कहीं ना कहीं आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि आप 1 घंटे तक अच्छे से फोकस कर पाओगे एंड 2 घंटे तक अच्छे से फोकस कर पाओगे, बट जैसे ही 2 घंटे पूरे होंगे उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएगी. नेक्स्ट वी हैव स्लीप deprivation, inadequate rest due to shift work और personal issues. ये भी एक रीज़न है फैटीग का. बेसिकली जब आप प्रॉपर रेस्ट नहीं आपको मिलता है, आप प्रॉपरली सो नहीं पाते हो काम की वजह से. कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल काम करते हैं, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या क्या होती है, कभी डे शिफ्ट होती है, कभी नाइट शिफ्ट होती है, तो उसकी वजह से जो रोटेशनल जो जॉब है उसकी वजह से वो प्रॉपर उनकी नींद पूरी नहीं होती है. Next we have poor workplace environment, which means the high noise, improper lighting और uncomfortable temperature. कि जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, बहुत ही गर्मी है और उस गर्मी में अगर आपके पास एसी नहीं है, प्रॉपर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उसको वैसे ही थकान होना स्टार्ट हो जाएगी because of uncomfortable temperature. Next we have the major effect. First effect we have reduced alternation, increased accident, low productivity, health issues, and these are the major issues of or major effect of fatigue. Reduced alternation, that means leading to higher chances of mistake. And second we have increased accident due to slower reaction time. And third we have low productivity, workers are unable to sustain high output level, and health issues like headache, muscle pain and chronic stress. For example, a driver on a 12-hour shift may lose focus and cause a traffic accident.
Other example we have surgeon performing surgeries back to back without rest may commit error. ये सारी चीज़ें होती हैं फैटीग की वजह से। इसके रिजल्ट क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या हैं बेसिकली। जब प्रॉपर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, जब आपने ओवर टाइम काम किया होगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका फोकस है वो हिल जाएगा। आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओगे। आप किसी भी टास्क पे 100% फोकस नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सीडेंट के चांसेस हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी कम होगी, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे आपको, और ये भी बहुत चांसेस है कि गलती होने के, क्योंकि फोकस ही नहीं होगा। फिजिकली और मेंटली आप वैसे ही एग्जॉस्ट हो गए होंगे ज़्यादा काम करने की वजह से। नेक्स्ट वी हैव कोपिंग विद फैटीग, कि अगर ये सारी प्रॉब्लम आती हैं तो इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़, रेगुलर ब्रेक एंड रेस्ट पीरियड। अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना ही लेना है। और इन बिटवीन भी 8 घंटे के बीच में अगर कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, जैसे लंच ब्रेक है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ताकि ये सारी चीज़ें क्यों दी गई होती हैं, ताकि जो पर्सन है वो अपना 100% दे सके, थोड़ा सा वो फ्रेश हो जाए बीच में, एंड काम करने के टाइम पे वो उसको वो प्रॉपर वहाँ पे फोकस कर सके। एंड शेड्यूलिंग वर्क शिफ्ट वाइजली, अवॉइडिंग लॉन्ग शिफ्ट। Next, we have providing a comfortable work environment like temperature, sitting, and fourth we have promoting healthy sleep habit among worker। ये सारी चीज़ें करके जो fatigue है उससे हम cope कर सकते हैं। Next we have monotony, which means the feeling of dullness arising from repetitive and unchallenging tasks, and these are the major causes: repetitive work, which means performing the same task repeatedly, and lack of variety, which means the no change in work type or method. Next we have minimal interaction, limited communication with co-worker, and next we have rigid procedure, that means no flexibility or creativity allowed. Next we have the major effect: decrease the motivation, lowered work quality, mental fatigue. For example, is an assembly line worker quitting the same part on product all day and a cashier scanning item for 8 continuous hours. नेक्स्ट वी हैव द कोपिंग विद मोनोटनी, कैसे हम कोप कर सकते हैं मोनोटोनी से। जॉब रोटेशन के थ्रू, चेंजिंग टास्क पीरियडिकली, एंड नेक्स्ट वी हैव जॉब एनरिचमेंट, दैट मीन्स कि एडिंग मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग टास्क इन अ पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट वी हैव इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इनटू रूटीन टास्क, कि क्या करना, क्रिएटिविटी वाले टास्क भी इंक्लूड करना जो डेली के जो टास्क हैं उसमें। ग्रुप वर्क और टीम टास्क टू इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वी हैव द बोर्डम, which means that emotional state of being uninterested, unchallenged, and mentally unstimulated during work. These are the major causes under stimulation: very easy or slow paced work, and isolation, working alone for long hours, lack of goals, no clear short term or long term goals or target. Next, we have the major effect: low concentration, poor job satisfaction, risky behavior. For example, a security guard at the site where nothing happened for hours, and receptionist waiting for occasional visits during long shift. Next, we have coping with boredom, setting small achievable goal for the day and creating opportunities for skill development. Apart from that, also increasing the employee engagement through feedback and new assignment. Next topic we have safety and accident, that means the safety is the condition of being protected from harm or injury. Accident are unexpected event leading to injury, damage or loss. Basically, कहीं भी कोई भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, सबसे पहले उसकी सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है ताकि उसको इंजरी ना हो। And these are the major causes: human error, mistake made due to lack of attention or knowledge, and second,
We have poor maintenance, which means the faulty machine or unsafe equipment. Because of this reason, there may be the chances of accident. Next, we have the hazardous condition, which means the slippery floor, poor lighting, unsafe height. Next, we have lack of training, which means the worker unaware of safety protocol. Next, we have the major effect. क्या क्या major effects हैं? Injuries and fatalities, which means the physical harm to worker. Next, we have loss of productivity. That means the time lost due to investigation and downtime. High cost medical bills, insurance and legal expenses. Next, we have low employee morale, which means the fear of working in unsafe environment. For example, a factory worker getting injured due to a machine without proper guard, a construction worker falling from an unprotected scaffolding. Next, we have the coping with safety and accident. किस तरीके से आप कोप कर सकते हो सेफ्टी एंड एक्सीडेंट से? रेगुलर सेफ्टी ड्रिल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए. नेक्स्ट, वी हैव इंस्टॉलिंग प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक हेलमेट एंड guard drills. Next, we have the conducting regular safety audit and inspections. Apart from that, we have immediate reporting and addressing of safety hazard. ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं सेफ्टी एंड एक्सीडेंट से. And next topic we have organizational stress. Organizational stress refers to the stress arising from various factors within the workplace structure, culture and practices, and these are the major causes of organizational stress. Heavy workload, which means the unrealistic deadline and excessive task. Next, we have role ambiguity, which means the confusion about job responsibilities. And next, we have poor communication, which means the lack of clarity between manager and employees. Next, we have job insecurity, which means the fear of losing the job. And these are the major effect of organizational stress. First, we have burnout, which means the emotional and physical exhaustion. Next, we have conflict at workplace, means due to frustration and misunderstanding. Next, we have the absenteeism and turnout, which means the worker leave or avoid work. And next effect, we have mental health issues, which means the depression and anxiety. For example, employees constantly being asked to stay late with no recognition, as well as unclear instruction causing conflict between team members. Next topic, we have coping with organizational stress, which means providing clarity in job roles and expectations, and also offering mental health support system or service. Apart from that, increasing open communication channel, balancing workload and offering reasonable deadline, building supportive leadership and management. ये सारी चीज़ें करके जो organizational stress है उससे cope कर सकते हैं. And next topic, we have work and equipment design. That means the designing work processes, tool and equipment to match human capabilities and limitation, ensuring efficiency and safely. काम करते टाइम किस तरीके से जो टूल होंगे या इक्विपमेंट होंगे, किस तरीके से उनको वो डिज़ाइन होने चाहिए ताकि सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए बेसिकली. नेक्स्ट, वी हैव मेजर कॉजेज ऑफ पुअर डिज़ाइन. फर्स्ट, वी हैव इग्नोरिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स and also designing one size fit all equipment, lack of user feedback during design. Apart from that, we have major effect of poor design. फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं अगर आपने जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीनरी बनाई है. फॉर एग्जांपल, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, बैक पेन, ये चीज़ें हो सकती हैं. नेक्स्ट, वी हैव रिड्यूस्ड वर्क स्पीड एंड क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा और स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा. अगर मशीनरी अच्छी नहीं है, बहुत स्लो काम कर रही है, तो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा काम करने में. नेक्स्ट, वी हैव हाई एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंटिज्म. अब इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो फ्रस्ट्रेट होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे अपनी जॉब से, एंड उसकी वजह से वो उनकी जो छुट्टियां हैं वो भी ज़्यादा होंगी, उनका मन ही नहीं करेगा काम करने का. फॉर एग्जांपल, चेयर विदाउट number support causing back
problem in the office worker, and also control panel in machine being too complex to operate safely. And next we have good practices, which means the ergonomically designed workstation, and also adjustable chairs, tables and machinery, user friendly interface design, consulting worker during the design phase. Next we have working conditions, which means the working condition, which means to refer to the physical and psychological environment under which employees perform their job. These are the element of working condition: temperature, lighting, noise level, cleanliness, hygiene, facilities like toilet, canteen and rest areas, work hour and break. ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं वर्किंग कंडीशन के। ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, लाइटनिंग का ध्यान रखा जाए, जहाँ पे भी कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वहाँ पे नॉइज़ ना हो, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे पाए। और सफाई का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, रेस्ट एरिया होना चाहिए, एंड वर्क आवर्स कितने हैं और उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक होने चाहिए। एंड इफेक्ट ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशन, विच मीन्स द हायर स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होंगी तो उससे स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, डिससेटिस्फाई होंगे एम्प्लॉयज़ अपने काम से, इंक्रीज हेल्थ रिस्क, और उससे जो है वो हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट, ये भी चांसेस है। हाई टर्नओवर रेट, फॉर एग्जांपल worker in a factory with poor ventilation suffering from respiratory issues, and employees in an office with the glaring light and experiencing frequent headache. Coping with the poor working condition, which means maintaining proper temperature control like heating, cooling system, and ensuring cleanliness and hygiene, providing necessary welfare facilities like clean drinking water and restroom. Next we have ensuring reasonable work schedule and sufficient break time. So this is the overview of all the topics that we covered in today's class. First we have fatigue. फैटीग का बेसिकली अगर हम कारण देखें क्यों फैटीग होती है तो ये है ओवरवर्क एंड स्लीप लॉस। जब आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, एंड अगर 8 घंटे की जॉब है वो आप कर रहे हो 18 घंटे की जॉब, तो उसकी वजह से ये कारण है फैटीग होने का। और इफ़ेक्ट क्या पड़ता है अगर फैटीग हो जाए तो उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, एक तो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। हम कोप कैसे कैसे कर सकते हैं? रेस्ट करके, ब्रेक करके, इकोनॉमिक वर्क, दैट मीन्स कि प्रॉपर रेस्ट मिले, बीच में ब्रेक भी होना चाहिए काम करते टाइम पे, एंड इकोनॉमिक वर्क कि जो भी आप इक्विपमेंट वगैरह ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर चेयर भी यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरीके की होनी चाहिए ताकि बैक में पेन ना हो। नेक्स्ट वी हैव मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब क्या है कि रेपिटेशन ऑफ टास्क। जब आप बार बार सेम काम करते हो उसकी वजह से क्या हो जाता है? मोनोटोनी आती है बेसिकली। और इफ़ेक्ट क्या होता है? डिसइंटरेस्ट, मेंटल फैटिग, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। अगर एक पर्सन है वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही काम कर रहा है, प्रिंट आउट ही निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? रिपीटिशन हो रही है और उसका जो इंटरेस्ट है वो काम करने में इतना नहीं लगेगा। और इसके मेथड क्या क्या हैं? जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट। एक तो या तो आप जॉब में जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक काम कर रहा है उसके टास्क बढ़ा दिए जाएं ताकि क्रिएटिविटी, कुछ तो क्रिएटिविटी आए, एंड जो पर्सन है वो बोरियत जिसको बोलते हैं कि उसके लिए एक नई चीज़, उसको नया टास्क मिले जिससे कि वो बोर ना हो काम करते टाइम पे। नेक्स्ट वी हैव बोर्डम। बोर्डम जो होती है वो तब आती है जब लैक ऑफ चैलेंज होता है। अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ प्रिंट ही निकालने हैं तो वहाँ पे क्या है? लैक ऑफ चैलेंज है, तो पर्सन तो वहाँ पे बोर होगा ही होगा। और इसके इफेक्ट क्या है कि एब्सेंटिज्म, पुअर फोकस। एक तो एब्सेंटिज्म के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, पर्सन का मन ही नहीं करेगा काम करने का, कि नहीं छोड़ो, करना तो सेम ही काम है। एंड फोकस जो है, फोकस भी कम होगा काम के लिए।
एंड कोप कैसे कैसे कर सकते हैं, गोल सेटिंग एंड स्किल्स ग्रोथ। एक प्रॉपर टास्क मिलना चाहिए एंड उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही टास्क दो और उस टास्क में उस कैंडिडेट को, उस एम्प्लॉय को कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, स्किल पे आप काम कर सकते हो और प्रॉपर गोल सेट कर सकते हो कि आज का गोल आपका ये है और इतना आपको टास्क कंप्लीट करना है। तो उससे जो बोर्डम है ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी एंड एक्सीडेंट विच मीन्स द ह्यूमन एरर, पुअर मेंटेनेंस। These are the causes of safety and accident and these are the effect, injuries, डाउन टाइम, ये चीज़ें हो सकती हैं, इंजरी हो सकती है, डाउन टाइम हो सकता है। एंड कोपिंग, या तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे तो प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट वी हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। ये कब होता है, जब वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है काम करने का, पुअर कम्युनिकेशन होती है और इफ़ेक्ट क्या है, बर्न आउट एंड टर्न ओवर। एंड कोपिंग मेथड, काउंसलिंग से जो स्ट्रेस हो रहा है एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कम हो सकता है। वर्कलोड मैनेजमेंट, जो आपको टास्क असाइन किया गया है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। वर्क एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन, इसका कॉज क्या है, पुअर इग्नोमिक्स। एंड दीज आर द इफेक्ट, इंजरीज, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वर्क एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन की वजह से। अगर प्रॉपरली वो डिज़ाइन नहीं है तो इंजरीज होने के चांसेस है। जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाई फील करेगा अपना काम करते टाइम पे। एंड ये कोप करने के मेथड है इग्नो, मिक्स, डिज़ाइन एंड यूज़र इनपुट। यूज़र को पूछा जाए किस तरीके की जो इक्विपमेंट है वो डिज़ाइन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी हैव वर्किंग कंडीशन। पुअर इन्वायरमेंट जो है ये मेन कॉज है वर्किंग कंडीशन का। एंड इफ़ेक्ट क्या है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लो मोरल। एंड कोप कैसे कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, इन्वायरमेंट में चेंजेस लाके। ठीक है, जो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का ध्यान रखा जाए, लाइटनिंग का ध्यान रखा जाए। इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके आप वर्किंग कंडीशन अच्छी कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।